doing? I'm doing great. How are you? Yeah, I'm fine. We are glad that you're here. I'm glad to be here. This is our last class, right? I know. Yes. So we have learned a lot. We really want to welcome you once again. And we are really excited about this class also. And as we have asked everyone to ask questions. Yes. So Vikram just said that Ritu's not going to be able to join us today. yeah. Okay. Yes. Do you want to see? I don't know how many people are in your group. Do you want to see how many people are here if we want to get started then? Yeah, we can start with prayer. Okay. And then we can start taking questions. Sounds great. Yes. So do you want to pray? Sure. Do you want me to just pray in English or do you want me to pray in sentences to translate? No, you can pray in English. No Okay. problem. Okay. Father God, we thank you so much for this opportunity for us to come together as brothers and sisters and to learn more about you. I bless my family in India right now. I just ask that you give them divine wisdom and strategy in all that they do. God, we just ask for dreams and for visions and new ideas for how to love the kids and how to unlock their little hearts. Jesus, I thank you for this opportunity. And we give you this class, we give you our ministries, we give you the children that we're responsible for. We thank you for it. And we ask that you help us to steward everything that's in our hands well. We love you, Jesus. Amen. Amen. Okay. Okay. So did they give questions to you or are they going to put it in the chat or ask it? No, they didn't. They haven't give yet. आपके जो भी questions हैं, आप please अभी पूछ सकते हैं. हमने जैसे आज का सेशन जो है क्वेश्चंस के लिए रखा है, तो आप सब अपने क्वेश्चंस वर्बली भी पूछ सकते हैं या आपको लिख के कंफर्टेबल है तो आप लिख के भी चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जो हैं भेज सकते हैं. And something I could start with, Sanjita asked a really good question. When we talked about it, I answered it before, but for the rest of the group, we could also start with that question if we wanted to. She was asking about control and like little kids. Go ahead. शुरू करने के लिए जब तक सभी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या तैयार कर रहे हैं, आप लोग तब तक क्वेश्चन अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिए. तब तक जैसिका स्टार्ट करने के लिए संजीता दीदी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को जो है कंट्रोल करते हैं या उनसे चीजों को मनवाते हैं, क्या वो सही है या गलत है, या किस तरीके से हमें उनको सिखाना चाहिए. तो उससे उन्होंने उनको आंसर दे दिया, लेकिन वो चाहते हैं कि वो सबके साथ वो बात को शेयर करें. So Sanjita was asking about my comment with control being witchcraft, but little kids, they need to be controlled because they're children and they're crazy. And so what was I meaning and what does that look like? So if you want to translate that, that'll start the answer. उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जो जैसे कि बोलते हैं, मतलब बोला गया है, वचन में भी बोला है कि किसी को कंट्रोल करना वो एक जादू टूटने के समान है, लेकिन हमें अक्सर अपने बच्चों को कई चीजों में, कई ऐसे एरियाज है, कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे हमें अपने बच्चों को पेरेंट्स होने के नाते कंट्रोल करना पड़ता है. तो उसके बारे में उन्होंने सवाल पूछा था. So control is something from the enemy, and the Bible compares it to witchcraft. However, self-control is a fruit of the Holy Spirit. तो जिस तरीके से अगर किसी को कंट्रोल करना, किसी को बांध करके रखना, बाइबल हमें ये शैतान की तरफ से है और बाइबल हमें बताती है ये जादू टूने के समान है. लेकिन दूसरी तरफ बाइबल हमें बताती है कि एक फ्री विल को इच्छा देना जो है परमेश्वर की ओर से है. In Timothy, it says that the Lord has not given us fear, but power, love, and self-control. हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करने का, अपने आप के ऊपर संतुलन पाने का एक आत्मा दिया है.
whole foundation or the meaning behind self-control is I have free will and I'm learning how to self-manage my choices. Sorry. So with the Mm. what the basis or the foundation of free will and self-control is that I have free will and I'm choosing to manage my choices well based off of that free will. और स्व इच्छा का अर्थ है कि मेरे पास चुनाव है और ये मेरी इच्छा है कि मैं किसे चुनूं और उसके उस चुनाव के मुताबिक मैं अपने जो चुनाव को करके मैं अपने जीवन को जी सकता हूँ. And that's how the Father parents us, and he gives us free will for us to choose. और उसी तरीके से परमेश्वर हमें एक स्वयं इच्छा देते हैं, एक चुनाव को रखते हैं और उसी तरीके से हम पेरेंट्स होने के नाते उस चुनाव को अपने बच्चों के सामने रख सकते हैं. In the Garden of Eden, God put two trees, the tree of life and the tree of knowledge of good and evil, so that Adam and Eve could choose, had the ability to choose a poor choice. तो जैसे हम देखते हैं अदन की वाटिका में परमेश्वर ने दो पेड़ों को लगाया, एक अच्छे और बुरे ज्ञान का फल था और एक था जीवन का वृक्ष. तो परमेश्वर ने मनुष्य को एक फ्री विल दी, एक स्वयं इच्छा दी कि वो जिसका चुनाव करना चाहे वो उसको चुन ले. If the tree of knowledge wasn't there, Adam and Eve wouldn't have had the ability to not choose God. They would have had to choose him. They would have been robots. just wait for a minute, Jessica. Yeah. आप सबको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हेलो, आप थोड़ी अपना डिस्टर्बेंस माइक आ रही अनम्यूट है. करके बताओ. नो, कट कट कर आ रही है. Actually, they are saying my voice is not clear. Yeah, your connection is breaking up more. Are you still there? Jessica, can you Yeah. hear me now? Now I can. Yes. Is it clear? Yes. Now you sound clear. Okay. Yeah. Can you repeat what's the last thing you said? Yep. So if the tree of knowledge wasn't there, Adam and Eve would have had to choose God. They wouldn't have had the free will to not choose God. अगर भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष वहां पे नहीं होता तो आदम और हवा के पास कोई स्वयं का चुनाव नहीं था, वो खुद चुनाव नहीं कर सकते थे, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, तो उनको दूसरा ही वृक्ष का फल खाना पड़ता. So when we are parenting our kids, we don't want to force them to do anything, but give them choices. इसलिए जब हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो हम उनके ऊपर कोई भी चीजों को लादे नहीं, लेकिन हम उनको स्वयं इच्छा दें ताकि वो खुद चुनाव कर सके. That way I'm not controlling them. I'm letting them self-manage and choose their choices. और इस तरीके से मैं उनको उनके ऊपर कोई तानाशाही नहीं दिखा रही हूँ, उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उनको एक चुनाव दे रही हूँ ताकि वो अपने जीवन के जो क्षेत्र हैं उनके लिए वो खुद चुनाव कर सकें. So for like parenting with my daughters, I will tell them two choices and I'll tell them the consequences for those choices. और जैसे मैं अपनी बेटियों का पालन पोषण करती हूँ, उनके माता होने के नाते मैं उनके सामने दो चुनाव को रखती हूँ और उनको उसके जो परिणाम है दोनों चुनाव करने के बाद जो परिणाम निकलेंगे उनको भी उनके सामने रखती हूँ ताकि उनको एक चॉइस करने में आसानी हो, चुनाव करने में आसानी हो. Like they can go to bed with a happy heart, we call it, that's without throwing fits, or they can throw fits for bed, and if they throw fits, then they'll get swats or a cold bath. वो उनके सामने मैं इस तरीके से चुनाव रखती हूँ कि वो जब सोने से पहले मैं उनसे पूछती हूँ कि वो एक अच्छे हृदय के साथ, एक खुशी मन के साथ वो सोने के लिए जा सकते हैं, या फिर जो कुछ भी पूरे दिन में उनके साथ बुरा हुआ है उसको रखते हुए, उन चिंताओं को रखते हुए वो सोने के लिए जाएं.
So then they are getting to think about their choices and make a choice with their own free will what they want to do. I'm not controlling them. और इस तरीके से मैं उनको उनके ऊपर कोई तनाव नहीं बनाती हूँ, उनके ऊपर कोई कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उनके सामने स्वयं इच्छा को रखती हूँ कि वो अपने आप से चुनाव को करें कि उनको क्या करना चाहिए. And you can see the father did that with Israel. You do good, you get blessed. You make bad choices, you get punished, like you get the consequences of those bad choices. और इस तरीके से हम बाइबल में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ भी ऐसे किया. परमेश्वर उनको बार बार चेतावनी देते थे कि अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें ये आशीषें मिलेंगी, और दूसरी तरफ अगर तुम बुरा करोगे तो उनके परिणाम ये परिणाम तुम्हें भुगतने पड़ेंगे. And I know we talked about this last time, but the discipline, whenever I'm disciplining them, it's because I'm trying to help them make good choices. और जब हम उनको अनुशासित करते हैं तो अनुशासित करने में हम उनको मदद करते हैं कि वो एक अच्छे चुनाव को कर सकें. I discipline because I love them and because I see the destiny and who God made them to be. और जब मैं उन्हें अनुशासित करती हूँ तो मैं वो देख पा रही हूँ कि किसके लिए परमेश्वर ने उनके लिए क्या मंजिल रखी है, किसके लिए उन्हें बनाया है, ताकि वो अच्छे चुनाव को करके उसको हासिल कर सकें. So I'm calling them higher and I'm believing in them, and I tell them that when I discipline them. Just wait for a minute. Sister Supreet, is she there? Sister, can you translate, because someone is saying my voice is not that much clear. ओके ठीक है, मैं कर देती हूँ. जस्ट मेरे को 1 मिनट. Okay, because here weather is not good. तब तक मैं कर देती हूँ, ठीक है? Just let me know when you are ready. Okay. Yes, Jessica. Okay. So when I'm disciplining my children, I tell them why I'm disciplining them and how much I love them. और जब मैं अपने बच्चों को अनुशासित करती हूँ तो मैं उनको बताती हूँ कि मैं उन्हें क्यों अनुशासित करती हूँ और मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ. So it's not about me trying to control them. I'm trying to empower them to make good choices. तो इस तरीके से मैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती, उनके ऊपर तानाशाही करने की कोशिश नहीं करती, लेकिन मैं अपने प्रेम को उनको दिखाती हूँ और इस तरीके से मैं उनको अनुशासित करती हूँ. And that's the difference between the spirit of control and the Lord's fruit of self-control. और ये फर्क है कि किस तरीके से एक तानाशाही करने का, एक कंट्रोल करने का आत्मा, और दूसरी तरफ जो परमेश्वर ने एक फ्री विल का, एक स्वयं इच्छा दी है, उसका आत्मा. The spirit of control says you don't have a choice. You don't have free will. और जो तानाशाही की आत्मा है वो ये कहती है कि तुम्हारे पास कोई चुनाव नहीं है, जैसा मैंने कहा है तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा. Self-control says you have a choice, but this would be a better choice. और जहाँ पे स्वयं इच्छा बोलती है कि तुम्हारे पास ये चुनाव है, अगर तुम वो बताता है कि ये भला चुनाव है, अगर तुम ये चाहते हो तो उसका ये परिणाम होगा, और तुम अगर ऐसा करते हो तो उसका दूसरा परिणाम होगा. Yeah, so that sums that up for the difference between control and self-control. Priya asked how to start the first Sunday school class. Do you want me to start, or do you want to wait for you sound clear to me, so I don't know if it's someone that if their connection is not good, but you sound clear on my side. Okay. मेरी आवाज सबके लिए क्लियर है? अगर किसी को नहीं क्लियर आ रही, गुरपिंदर दीदी ने बोला है मेरे को क्लियर नहीं है, हो सकता है आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम हो. जेसिका कह रही है कि मेरे को क्लियर आ रही है आपकी आवाज, तो हो सकता है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो. Okay, they said it is clear. Okay. अगर let me ask them if they have any question. Yeah. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लीजिए, क्योंकि जैसे लास्ट क्लास में भी हमने कहा था कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप प्लीज तैयार रखना. और
अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर जैसिका कोई और टॉपिक के साथ थोड़ा बहुत आपको बताना चाहते हैं, लेकिन आपके प्लीज ये लास्ट क्लास है। अगर कोई भी डाउट है अपनी पेरेंटिंग को लेकर के या संडे स्कूल को लेकर के या किस तरीके से आप बच्चों के साथ मिनिस्ट्री कर सकते हैं, तो उसके लिए आप प्लीज क्वेश्चंस को पूछिए। जैसे संजीता दीदी ने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछा, तो वो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था और एक अच्छा टॉपिक था, और उसने काफी सारी चीजों को क्लियर किया कि किस तरीके से हम दो स्पिरिट्स को हम पहचान सकते हैं। तो इसलिए आपके भी ऐसे कई सवाल हैं तो आप उनको रख सकते हो। So Priya or Nidhi, Priya asked in the comments how to start the first Sunday school class. I could ask that while other people are thinking of their questions. Is she asking, do you know if she's asking virtually on a screen or face to face for starting? हेलो निधि, मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, मतलब कि अकेलापन सा होता है उनमें बार बार मतलब कि उनको समझाने पर भी कई बच्चे होते हैं ना अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं, उनको मीन्स की कैसे डील करें, बाकी बच्चों के साथ कैसे बाकी बच्चों के साथ कैसे। ठीक है, so here is one question asked by a sister that she's saying the children who want to who are very much introvert and they want to stay alone, they don't want to mingle up with anyone, so how can we deal with such kids? The best what do you say, tool that I have seen has just been patience and loving them. I don't know. सबसे अच्छा जो मैंने एक टूल देखा है वो है कि धीरज को रखना और उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करना। If I don't have the time to, I'll put one of my helpers as their buddy. They'll go sit with them and just try and talk to them and get them to open up. अगर मेरे पास समय नहीं होता, जो मेरे साथ मददगार हैं वो जाते हैं, वो उनके साथ बैठते हैं और वो उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। The kids are hungry to know Jesus because we're all created for that. We're all created to be loved. It's just a matter of them starting to feel safe to start to connect in that. जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा भूखे होते हैं प्यार के लिए, और क्योंकि इस तरीके से हमें बनाया गया है कि हमें प्यार की जरूरत है, हम क्योंकि इस तरीके से बनाए गए हैं, तो उनके अंदर वो एक भूख होती है कि हमें वो प्यार मिले। One thing that I have found effective was to pray over them, even whether openly or not openly, just in your heart, pray over them when they come into class. और जो सबसे ज्यादा मैंने जरूरी चीज देखी है जो बहुत प्रभावशाली है कि उनके लिए प्रार्थना करें, चाहे आप मन में प्रार्थना करें, चाहे उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें। जब भी वो क्लास में आए आप उनके लिए अंदर ही अंदर या उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें। Here in the West, we call it blessing their spirit. And so you can pray over them to have fear go and rejection go and bless their spirit with peace. हमारे यहाँ पे हमारी कंट्रीज में ऐसे बोलते हैं कि उस आत्मा को आशीष देना। तो किस तरीके से हम बोलते हैं कि इसके अंदर जो भी रिजेक्शन है, जो भी नकारात्मक चीजें हैं, जो भी उसको फील होता है कि मुझे कोई नहीं चाहता, और जो उसके अंदर डर है, उन सब चीजों को दूर करते हुए हम प्रार्थना करते हैं उसकी आत्मा को परमेश्वर ब्लेस करें। So, for example, there was a little boy whose dad had been gone on work for 2 weeks. And when he came into class, he was distraught and just crying and hysteric. और एक लड़के के बारे में मैं बताना चाहती हूँ जो 2 हफ्ते के लिए कहीं गया था, और फिर जब वो क्लास में वापस आया उसके बाद वो पूरा उसका जो ध्यान है वो पूरा भटका हुआ था, और वो मतलब बहुत ही ज्यादा तनाव में था और वो बहुत ज्यादा रो रहा था। To his little 2-year-old heart, he didn't know if dad was coming back. He didn't understand that dad was gone on work and that he still loved him, that he still cared about him. To him, he was abandoned. When his dad went for work? Yeah, his dad was on a 2-week business trip. And so his heart, Okay. he's a little baby. He didn't understand that dad was coming back and dad still loved him. ओके तो ऐसा हुआ कि उसके जो पिता थे वो 2 हफ्ते के लिए घर से बाहर गए हुए थे, और ये बच्चा जो है 2 हफ्तों में बहुत ज्यादा तनाव में आ गया, क्योंकि वो 2 साल का था और वो ये नहीं समझ पाया कि मेरे जो पिता हैं वो काम से बाहर गए हैं,
वो इस बात को नहीं समझ पाया और उसने सोचा कि हमारे पिता ने हमें छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया और उससे प्रेम करना छोड़ दिया, तो इस करके वो बहुत ज्यादा निराशा में आ गया था। So I'm holding him while he's crying, and I just start praying over him. I command the spirit of abandonment and the spirit of rejection and all fear to go. और जब मैंने उसको देखा वो रो रहा था और मैंने उसको पकड़ा हाथ में, क्योंकि वो 2 साल का था, और मैंने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया कि जो स्पिरिट ऑफ फियर है उसके अंदर, जो उसका अंदर डर का आत्मा है, और जो भी रिजेक्शन, जो उसको लगा कि मुझे छोड़ दिया गया है, मुझे तिरस्कृत किया गया है, वो सब चीजें जो उसके अंदर बैठ गई थी, उसके लिए मैंने प्रार्थना करी। And I was praying, in its place, I bless you with peace, and I bless you to know that you are loved and that you are wanted. और मैंने उसके लिए ये प्रार्थना की कि मैं इसको आशीष देती हूँ कि ये जान पाए कि इसको प्रेम किया गया है, और उसको मैंने आशीष दी, उसके लिए शांति के लिए प्रार्थना करी, उसके लिए शांति के लिए आशीष मांगी, और उसके लिए प्रेम को मैंने मांगा। And speaking in tongues makes a big difference for shifting what's going on in their heart as well. और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, ये बहुत ही एक बड़े बदलाव को बताता है कि उनके हृदय में क्या चल रहा है। And after praying over him, it was just a couple minutes of praying, he took a deep breath and just relaxed into my arms and was done crying. और जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, 2 मिनट के लिए मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, लेकिन वो 2 मिनट में उसने एक बहुत ही लंबी सांस ली, और जैसे उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा तनाव जो है चला गया, और वो शांति में भर गया। And so just praying over him, even though his mind didn't understand because he was only 2, his heart was able to receive what I was praying over him. बेशक वो 2 साल का था, हो सकता है उसके जो दिमाग ने उस बात को नहीं समझा हो, लेकिन उसकी जो आत्मा है उसने उन बातों को, उस प्रार्थना को अपने अंदर ग्रहण कर लिया था। So speaking in tongues and blessing their spirit works really effectively, but the child still has a choice and their free will if they accept it or not. सो जो अन्य भाषा में प्रार्थना करना ये बहुत ही प्रभावशाली है, और उनके लिए प्रार्थना करना ये उनके आत्मा में शांति को देता है, उनके अंदर क्या चल रहा है वो हमें बताता है। लेकिन फिर भी बच्चे के पास चुनाव है कि वो क्या फिर भी उन्हीं फीलिंग्स में, जो वो जिसके साथ जिन इमोश भावनाओं में वो आया था उन्हीं के साथ रहना चाहता है, या वो जो उसने रिसीव किया अपने आत्मा में उसका चुनाव करता है। So even even babies have that choice to accept the invitation of, hey, would you like peace? Would you like joy? And they get to choose if they want to hold on to the sadness or if they want the joy and the peace. तो इसलिए जब हम बच्चों को एक न्योता देते हैं कि क्या तुम इसमें जुड़ना चाहते हो, तो ये उनका चुनाव है कि क्या वो आनंद को चुनते हैं, या फिर क्या वो उसी परिस्थिति में अपने रहना चाहते हैं। So my 4-year-old, when she was 3 and she was sad and throwing fits before bed, I told her, I was like, do you want to talk to Jesus and get rid of the sadness? And she said no. Your daughter? Yeah, my daughter. ओके मेरी बेटी जब 3 साल की थी, तो मैंने उसको वो बहुत ज्यादा टूटी हुई थी और किसी बात से परेशान थी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम अपनी परेशानी को, अपने जो ये उदासी है इसको परमेश्वर को देना चाहते हो, तो उसने कहा नहीं। So I can't control her and I can't force her to choose Jesus. So I told her, all right, that's your choice to choose sadness. तो मैं उसको, उसके जो चुनाव है उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जता सकती, तो मैंने उसने जब बोला नहीं, तो मैंने उसको बोला ठीक है, ये तुम्हारा चुनाव है कि तुम इसको नहीं करना चाहती। I just told her, while you're choosing sadness, you still are not allowed to throw fits. So if you throw a fit, you'll get a swat, but you can be sad in your heart and not throw fits. और मैंने उससे कहा कि तुम उदास हो, इसके कारण तुम किसी के ऊपर अपने गुस्से को नहीं निकाल सकती। So she chose for a few weeks sadness every single night. और उसने क्या किया कि कुछ एक हफ्ते तक, मतलब कुछ हफ्ते तक वो हर एक रात जो है वो उदासी में ही रहती रही। And I patiently just kept explaining to her,
when you're choosing the sadness instead of choosing Jesus, how does your heart feel? It doesn't feel good. तो मैं उसको बहुत ही धीरजवंत तरीके से मैं उसको ये सिखाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसने चुनाव किया था कि मैं अपनी जो उदासी है परमेश्वर को नहीं देना चाहती। तो मैं उसे ये सीखने देना चाहती थी कि जब वो उस उदासी को अपने अंदर बांध करके रखना चाहती है और परमेश्वर को नहीं देना चाहती, तो उसको कैसा लगेगा जब वो उस उदासी में रहेगी। वो अच्छा फील नहीं करेगी, उसको हर दिन उसका अफसोस होगा, हर दिन वो उस चीज से लड़ती रहेगी। And then I would explain, if you choose Jesus and you let him heal your heart, you'll have peace, you'll have joy again, but it's your choice. तो फिर मैंने उससे बात की, अगर तुम अपनी ये जो उदासी है परमेश्वर को दोगे, तो परमेश्वर तुम्हारे अंदर जो उसका परिणाम होगा, तुम्हारे अंदर शांति आएगी, तुम्हारे अंदर आनंद आएगा, लेकिन फिर भी चुनाव जो है तुम्हारा ही है। So after a few weeks, she decided to choose Jesus again and was back to being a happy, joyful little kid for bedtime. और फिर कुछ हफ्तों के बाद उसने कुछ हफ्ते लिए इस चीज का चुनाव करने में, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद उसने चुना कि मैं अपनी जो परेशानी है, अपनी जो उदासी है, ये परमेश्वर को देना चाहती हूँ। और फिर जब उसने ये अपनी उदासी, अपनी परेशानी को परमेश्वर को दिया, वो फिर से एक हंसमुख बच्चे के समान हो गई और वो सारी चीजों को एंजॉय करने लगी और आनंद से भर गई। And I've had the same conversations with her with anger. I let her choose anger in her heart, but she's not allowed to hit or yell at people like her sister. मैंने उससे बात की कि ठीक है, अगर वो गुस्से को अपने अंदर रखना चाहती है तो वो रख सकती है, ये उसका चुनाव है, लेकिन ये उसको अनुमति नहीं देता कि वो लोगों के ऊपर चिल्लाए और लोगों के ऊपर अपने हाथ को उठाए या उनके ऊपर अपने गुस्से को निकाले। And I talk with her and I explain, when you choose anger instead of Jesus, your heart feels hard and your heart feels yucky inside. और मैंने उसको ये सिखाया कि किस तरीके से अगर तुम गुस्से को अपने अंदर रखोगी, तुम्हारा हृदय जो है फिर भी टूटा हुआ रहेगा और तुम्हें अपने हृदय में अच्छा महसूस नहीं कर पाओगी। And eventually she'll get tired of feeling the anger and feeling yucky, and then she lets Jesus come and she feels joy and peace again. और फिर क्या हुआ कि कुछ समय तक वो उस क्रोध को अपने अंदर रख के परेशान हो गई और उसके हृदय जो उसका टूटा हुआ था उससे वो परेशान हो गई। उसने बाद में चुनाव किया कि मैं अपनी जो ये सारे दुख को परमेश्वर को दूंगी और फिर से वो आनंद से भर गई। But it's her making that choice and deciding how she wants to feel inside. It's her choice. और ये उसका चुनाव है कि वो क्या चुनना चाहती है और किस तरीके से अपने अंदर वो क्या महसूस करना चाहती है। So that ties back to the questions with the shy kids in class, because they get to start choosing and deciding, I want to have the joy, I want to have the peace instead of fear. और इसी तरीके से मैं अपनी क्लास में भी करती हूँ, मैं बच्चों के सामने चुनाव रखती हूँ कि वो चुनाव को करें, क्या वो आनंद को चुनना चाहते हैं, क्या वो शांति को चुनना चाहते हैं अपने हृदय में। Yeah. That's really nice and very helpful. Good. I'm glad. The questions are good because it's able to ask and address things that I didn't cover. Okay. So Priya asked how to start first Sunday school class. I Right. think she meant like face to face. Face to face. So Yes. how do you need to translate the question first? Sorry? Do you need to translate the question first, or do you want me to start answering? या सिस्टर प्रिया ने पूछा है कि किस तरीके से हम पहली संडे स्कूल क्लास को शुरू कर सकते हैं। So I would encourage you to start with a game introduction, like a game getting to let, as the kids are coming into class, just you're playing soccer or you're playing whatever games you guys like playing with balls, or sitting around and doing duck goose. I don't know if you guys play duck goose in India, but some sort of game to have the kids be playing and interacting with each other and interacting with you while you're waiting for the kids to be checked in. तो मैं इस तरीके से बोलूंगी कि जब आप पहली क्लास को शुरू करते हैं तो आप बहुत ज्यादा रुचिकर चीजों को करके, जैसे कि आप खेल से शुरू कर सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे अलग गेम्स होते हैं, लेकिन इंडिया में किस तरीके से जैसे म्यूजिकल चेयर वगैरह और कुछ ऐसे गेम्स है जिसमें बच्चे इंटरेक्ट करें, आपके साथ जुड़े,
उन सब चीजों को जिसके साथ बच्चे एक्साइटेड हो जाएं, उससे उत्तेजित हो जाएं, और उन सब चीजों से आप शुरू कर सकते हैं और एक इंट्रोडक्शन से आप लोग शुरू कर सकते हैं क्लास को। Kids love playing, and it's one of the fastest ways to take their walls down. तो ये जो बच्चे हैं खेलना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो खेल एक ऐसी चीज है जो उनको सबसे ज्यादा उस चीज में रुचि को देती है और वो एक साथ जुड़ सकते हैं। So be playing with the kids while they're coming in and being brought to class, and then once everybody is there, then you can get started. और जिस तरीके से बच्चे क्लास में आते जाते जब वो देखते हैं कि यहाँ पे खेल हो रहा है तो वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। I would start off class with introducing yourself and explaining the rules, the standard for the class. And explaining explaining the rules, what you're expecting of them during class. Okay. तो मैं जब क्लास को शुरू करती हूँ तो मैं एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के साथ शुरू करती हूँ, अपना परिचय देने के साथ शुरू करती हूँ, और साथ में कि क्लास में क्या रूल्स होंगे कि किन किन चीजों को आपने ध्यान में रखना है, जैसे पिछले बार भी बताया था। तो वो जो है नियमों के साथ में शुरू करना पसंद करती हूँ क्लास को। So in class, for us, we only have 2 rules. It's listen to the teacher and treat others how you want to be treated. तो मेरी क्लास में 2 रूल्स हैं, 2 नियम हैं। पहला है कि अपनी टीचर को सुनना, और दूसरा है आप दूसरों को इस तरीके से ट्रीट करें, उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि वो आपके साथ व्यवहार करें। And you can communicate things with the kids that we often don't think to communicate, like, I'm glad to be able to be here and teach you about Jesus. और आप इस तरीके से बच्चों को ये संकेत दे सकते हैं कि मैं यहाँ पे आज आपके साथ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बांट के बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। Or looking around the room and saying, wow, God created some amazing people here. और आप पूरे कमरे में बच्चों को देखते हुए, उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते आप ऐसे कह सकते हो कि वाह, परमेश्वर ने कितने खूबसूरत चेहरों को परमेश्वर ने बनाया है। The affirmations and explaining why you're there helps the kids to feel connected and understand the point of class. ऐसी चीजों को कि कई चीजों की घोषणा करना और ये बताना कि आप किस लिए यहाँ पे हैं, ये बच्चों को बहुत ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है। And then whatever you want to start with, whether it's working out or worship or the lesson time, explain what the thing is that you're about to do and why you're doing it. और आप चाहे जिस मर्जी चीज के साथ शुरू करना चाहें, चाहे वो परिचय हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो वर्शिप हो, चाहे वो कुछ चीजों को समझाना हो, कुछ टीचिंग देनी हो, लेकिन मकसद एक होना चाहिए। आप कुछ भी चूज कर सकते हैं कि आप पहले क्या करवाना चाहते हैं, लेकिन मकसद आपके दिमाग में जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों यहाँ पर हैं और इनसे किस बारे में बात करना चाहते हैं। Even though this isn't, we've been having the same kids for years, I still do that every single class. जबकि मैं कई सालों से ये ऐसा कर रही हूँ, लेकिन मैं हर एक क्लास में इन सब बातों का ध्यान रखती हूँ, इन सब चीजों की घोषणा करती हूँ। Kids learn best with repetition and saying things over and over and over. So I say a lot of the same things over and over and over again. तो जैसे कि बच्चे बार बार हम चीजों को दोहराने के द्वारा अच्छे से सीखते हैं, तो मैं कई ऐसी चीजों को अपनी हर एक क्लास में करना, उनके लिए दोहराना पसंद करती हूँ। Like how much I love them and I believe in them, or explaining why we're doing the workout or why we worship. I explain it over and over. जैसे कि बार बार उनसे बोलना कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, उनसे क्यों प्यार करती हूँ, और हम आराधना क्यों करते हैं, हम यहाँ पे किस लिए हैं, इन सब कुछ ऐसी बातों को मैं बार बार उनको बताना पसंद करती हूँ। So then you can do your lesson or worship, whatever you want to do, go through your schedule that you've created, and just keep we've covered all the rest of it, but that's how I would start the class. आप जिस तरीके से आपने अपने क्लास के लिए आपने स्ट्रक्चर तैयार किया है कि आपने अपना लेसन पहले देना है, स्टोरी के साथ शुरू करना है, कुछ भी जो भी है आप उनके साथ बांट सकते हैं, और फिर आप मतलब इन सब चीजों में से सीरियल ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन आपके दिमाग में सारी बातें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। Yeah.
और कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप अभी पूछ सकते हैं। हेलो निधि दी, हाँ जी। एक क्वेश्चन मेरे को भी पूछना था। जी जी। जैसे अभी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ना, संडे स्कूल करेंगे, तो हाँ जी। कई बार होता है कि आप खुद से डांस करके सिखाते हो बच्चों को, है ना, बट हर किसी को तो डांस आता नहीं। जैसे मेरे को ही ले लो, है ना, तो क्या जैसे हम स्क्रीन शेयर करके सिखाएंगे तो वो बेनिफिट रहेगा या नहीं? क्योंकि कई बार वो तो किसी और का भी होता है ना डांस, ऑनलाइन जैसे उठा के हम सिखाते हैं तो, या कोई स्टोरी शेयर करते हैं। मतलब मैं आपका क्वेश्चन समझी नहीं कि आप स्क्रीन शेयर करोगे तो वो हाँ जी, बेनिफिशियल होगा कि नहीं। हाँ हाँ, मतलब देखो हमें नहीं आ रहा ना उस टाइम पे, हमारे पास ऐसा कुछ है, अगर हम चाहें तो स्क्रीन शो कर सकते हैं उनके लिए, वो सही है या नहीं, या फिर हमें खुद सिखाना चाहिए? ये आप उनसे पूछना चाहते हो? हाँ जी। Okay. So here sister Seema wants to ask that as we are going to start our online Sunday school, Yeah. so which I shared last time. So she's asking when sometimes it's not possible for me to dance and teach kids how to dance for some songs. So is it okay if I share some screen and show them how others are dancing? So will that be beneficial for them or not? Is it because she physically can't dance, or why can't she dance? वो पूछ रहे हैं कि आप डांस कर नहीं सकते या क्यों, क्या कारण क्या है? मुझे डांस आता नहीं है, ठीक है, स्टोरीज तो आप कर सकते हो, है ना, तो डांस के लिए मुझे नहीं आता ना, इस चीज के लिए भी थोड़ा सा रहता है। Okay, she's saying I do not know how to dance, so that's why she's saying that I can share the stories, but for dance it will be difficult for me. Okay. You can show the screen if you want, but I encourage us to lead by example and to do it with the kids. आप स्क्रीन शेयर करके कर सकते हो, लेकिन मेरा जो पर्सनल वो कहते हैं कि मैं ये उत्तेजित करना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ वो चीजें करें जिसमें आप खुद इन्वॉल्व हो सके बच्चों के साथ, और बच्चे उस चीज को आपको देख करके, आप जहाँ पे आप एग्जाम्पल बन सके और बच्चे उस चीज को देख करके सीख सके। So I don't dance good and I don't sing good, but I still dance and I sing and I'm goofy with the kids. Pastor Vikram is asking Jessica, can you start dance classes for all of us? I will I just also said I learn. can dance good or sing good. You guys, I'm sure, are much better dancers. But the kids, they want to see you and how you are engaging with the Lord. How do you worship? How do you dance? And so I would encourage her to let go of the insecurity and the fear and just go for it, because they're kids. अच्छा, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बच्चे जो चाहते हैं कि वो आपको देखें कि आप किस तरीके से परमेश्वर के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप कैसे उनके लिए नाचना चाहते हैं और किस तरीके से आप उनके लिए करना चाहते हैं, आपके अंदर कितना उत्तेजना है कि आप परमेश्वर के लिए करें, कि किस तरीके से आप आराधना करते हैं। तो बच्चे जो है वो आपको देख के आपका अनुसरण करना चाहते हैं, तो वो आपको करते हुए चीजों को देखना चाहते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि वो बच्चे ही हैं, तो अगर आप उनके सामने अगर आप उनके लिए कुछ कर सको, उनके लिए कुछ एक्शन सॉन्ग्स या डांस कर सको, तो वो ज्यादा बेहतर होगा बजाय कि आप किसी और की स्क्रीन शेयर करो। Okay, thank you so much, Jessica. You're welcome. The kids are such a great place to practice because they're so forgiving. They're childlike, where adults are very strict and stoic, and if you mess up then it's a big deal, but kids, they're so gracious. बच्चे जो हैं बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिनके साथ हम कई चीजों को सीख सकते हैं और उनको सिखा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी जो है चीजों को सीख लेते हैं, और बहुत ही ज्यादा मतलब हमें उनके सामने शर्माने की भी जरूरत नहीं है कि अगर हम कुछ गलत कर देंगे, तो उनके साथ आपको इन्वॉल्व होने के लिए एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है। I tell the kids I'm learning too, and so as I'm making mistakes and things aren't working out, it's okay. We just laugh about it and move on. Okay. मैं ऐसे बच्चों को बोलती हूँ कि मैं भी सीख रही हूँ और मैं भी हो सकता है गलतियां करूं, और अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो आप उसके बारे में हंस सकते हो और उसमें आप आगे बढ़ते चलो।
the kids enjoy Okay, the I think we have other questions as well. I want to ask you that as in India, there are lots of religions and many people have come from different religions in Christ. And before coming to Christ, they used to be so religious and submitted in their religion and so as their children's. But one no when once they know Jesus, they surrender themselves cause it is easy for them to understand gospel, but it become difficult for children cause they think their parents are changing their religion. How to handle those children? So okay, let me translate this question first. Yeah. So okay, सिस्टर अमृत हैज आस्क्ड, सिस्टर अमृत ने क्वेश्चन पूछा है कि जैसे कि कोई कुछ लोग जो है जैसे कि इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं और कुछ लोग जो हैं वो अलग अलग रिलीजन से अपने विश्वास को बदलते हैं और जब वो अपने पहले रिलीजन में होते हैं, धर्म में होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं और उनके बच्चे भी उनके साथ वैसे ही बन जाते हैं और मतलब बहुत ही ज्यादा उनके अंदर डिवोशन होता है, भक्ति होती है और वो, लेकिन जब वो उनके पेरेंट्स विश्वास में आ जाते हैं और उनके पेरेंट्स जो है गॉस्पल को सुसमाचार को समझ जाते हैं और उनके लिए आसान होता है, लेकिन बच्चों के लिए उनको समझ में नहीं आती कि जो पहले कर रहे थे हम वो सही था या अब वो किस तरीके से, उनको लगता है हमारे पेरेंट्स ने जो है वो धर्म को बदल दिया है। अब हम उन बच्चों को हम किस तरीके से, उन्होंने पूछा है कि किस तरीके से हम उनको डील कर सकते हैं या उन बच्चों के लिए हम काम कर सकते हैं। I think I understand the question. It's just helping the kids transition in their new religion is what she's asking. Yeah, she's asking that when parents come in faith and like when they used to be in another faith, so they the children were following them and they were pious in their previous religion, but when once they comes in faith, so their parents do understand the gospel and the power of gospel, but for kids sometimes it becomes confusing that how what they were doing was right or they are having this assumption that their parents have changed the religion, so they are in a confusion how to handle such children who are in like dilemma, what was right. Yeah. So as the teacher, you are the face of Jesus to the kids. और शिक्षक होने के नाते आप बच्चों के लिए मसीह का एक चेहरा हैं. And the children have to they get to make their own decision of who they're going to follow, and that's going to be based off of your example and what they hear. और बच्चों के पास चुनाव है कि वो किसको अनुसरण करें, और वो जो चुनाव है वो जब आपको देखेंगे कि किस तरीके से आप उनको तस्वीर को दिखाना चाहते हैं, वो तब उस चुनाव को कर सकते हैं. Some kids, they will need to see the fruit and the reason why they should change beliefs. Sorry, they see the fruit? They should, kids, they get to decide which one is better, and sometimes that'll take time to see which one is better. Okay. बच्चों के लिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे इन्होंने बोला कि दो धर्म उनके सामने थे, पहले वो दूसरे धर्म में थे, अब वो इस विश्वास में आ गए हैं, तो उनके लिए कई बार मुश्किल होता है किस तरीके से समझ पाना कि कौन सा दोनों धर्मों की तुलना कर पाना कि दोनों में से कौन सा बेहतर है. So for Hinduism, for example, there's not the joy and the peace and the life and the power in Hinduism. और जैसे कि अगर मान लो कि वो हिंदू में से आए हैं, तो वो किस तरीके से उसमें sorry, can you repeat in Hinduism what they see? There in Hinduism, there's not joy and there's not peace and there's not the life in Hinduism. अब जैसे हिंदुइज्म में उनके पास कोई आनंद नहीं है, कोई जीवन नहीं है, और वो किस तरीके से मतलब उनके पास कोई जीवन नहीं है, तो वो उस रिलीजन में जब थे उनको इस बात का मतलब ये बातें थी. But in Jesus, we have healing, we have joy, we have peace, we have life. और जब हम मसीह में आ जाते हैं, हमारे पास चंगाई है, हमारे पास आनंद है, हमारे पास शांति है, हमारे पास जीवन है.
And for some people, that's enough and they'll change. But others, they need to see how that looks. और कुछ लोग जो होते हैं वो एक क्षण लगाते हैं, एक चुटकी बजाते हैं, जैसे एक क्षण लगाते हैं बदलने के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा समय लगता है और उनको एक समय चाहिए होता है चीजों को समझने के लिए, और फिर वो उनके अंदर बदलाव आता है. So in class, you're showing them what joy and what peace and what healing looks like. और आप क्लास में उनको दिखाते हैं कि आनंद किस तरीके का दिखता है, शांति किस तरीके की दिखती है, जीवन किस तरीके का दिखता है. तो ये आपका काम है कि आप क्लास में उनको किस तरीके से इन चीजों के बारे में दिखाते हैं. And every child gets to decide if they're going to choose the sadness and the anger or the joy and the peace and the life that Jesus has. तो हर एक बच्चे के पास ये चुनाव है. हम दो चीजों को दिखाते हैं कि उनके पास या तो वो दुख को और गुस्से को पकड़े रहें, या फिर उनके पास चुनाव है कि वो आनंद को, शांति को और लाइफ को, अपने जीवन को वो चुने. So you can be doing everything right and saying everything perfectly, and the child still not choose Jesus. और हो सकता है आप सब कुछ सही तरीके से करें, जो भी मतलब कोई भी आपके बीच में कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, लेकिन फिर भी हो सकता है वो बच्चा जो है वो यीशु मसीह को ना चुने. So the example for that is Jesus and his disciples. Jesus and his disciples. या और उसका जो उदाहरण है वो ये है कि यीशु मसीह और उनके चेले. So Judas was with Jesus. He saw the miracles. He was face to face with love itself. यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह का चेला था, वो यीशु मसीह के साथ रहा. उसने अपनी आंखों से उन चमत्कारों को होते हुए देखा. And we can all agree that Jesus said everything and did everything perfect. और हम इस बात से सभी सहमत होंगे कि यीशु मसीह ने सब चीजें जो है बहुत ही सिद्धता के साथ की, उनके बीच में कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी. And Judas still chose Satan instead of Jesus, with Jesus being face to face. और यहूदा ने फिर भी यीशु मसीह का चुनाव करने की बजाय शैतान का चुनाव किया. So our goal, I mean, we're not like we're probably not all walking like Jesus and as perfect as Jesus, but even with doing things well, the kids still might not choose Jesus. और जब हम बच्चों के सामने हैं, हम हो सकता है हम यीशु मसीह के साथ कि यीशु मसीह की तरह चल रहे हैं, यीशु मसीह की तरह सारे काम को कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है बच्चे फिर भी उस बात को ना समझें और यीशु मसीह को ना चुने. Yeah. Sanjita, she sent a direct message to me. She said, giving choice to kids needs a lot of patience, and being a parent, how can I work on that? As we know, it's difficult to change at once, but how can she start changing her heart with more patience? For herself? For herself, as a mom, Okay. as a parent. Yeah. जैसे सिस्टर संजीता ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, और अभी दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि जैसे वो समझ गए हैं कि हमें बच्चों को चुनाव को देना है, लेकिन एक पेरेंट होने के नाते, एक माँ होने के नाते वो किस तरीके से धीरज को रख सकते हैं कि वो अपने बच्चे को उतना समय दे सके कि वो सही चुनाव कर सके. So we are all in a journey of becoming like Jesus. और मैं ये कहूंगी कि हम सब एक यात्रा में है कि हम सब यीशु मसीह की तरह बन रहे हैं, सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं. And I think asking Jesus for help, like doing that prayer time of saying, Jesus, how do I grow in patience? और मैं कहूंगी कि आप अब एक माता होने के नाते परमेश्वर के पास जाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह में किस तरीके से एक धीरजवंत बन सकती हूँ. And that practicing of learning how to be more patient and learning how to love in the moment. और उस क्षण में अपने आप को तैयार करना कि प्रभु मैं किस तरीके से अपने बच्चों के प्रति धीरजवंत हो सकती हूँ. Is something that you have to work it out like a new muscle and get it strong over time.
और ये इस तरीके से जैसे आप एक अपनी मांसपेशी को बढ़ाने के लिए आप धीरे धीरे उस पे काम करते हैं, तो इसी तरीके से अपने अपने धीरज के लेवल को बढ़ाने के लिए आपको उस पे वर्क करना पड़ेगा, उस पे काम करना पड़ेगा। वो एकदम से नहीं हो जाएगा, लेकिन आप जिस तरीके से प्रार्थना करेंगे और वो बात आपके दिमाग में बनी रहेगी, तो आप धीरे धीरे बच्चों के प्रति धीरजवंत होते चले जाएंगे। And communicating with your kids in your process is actually really healthy. Is actually very It's healthy to talk with them that you're trying, like you want to be more like Jesus. आप You're learning how to be more like Jesus. जिस तरीके से आप इस बारे में बात करोगे अपने बच्चों के साथ भी कि किस तरीके से आप यीशु मसीह के साथ, अगर तुम यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हो, तो आपको उस तरीके से धीरज को भी आपके अंदर आपको रखना पड़ेगा। तो आप बच्चे भी और आप भी एक प्रोसेस को सीख पाएंगे कि किस तरीके से आप यीशु मसीह की तरह बन सकते हैं। I set a good example for my daughters when I take responsibility for my actions. और जैसे मेरे बच्चों के लिए जो सही उदाहरण है, वो जब मैं उनके सामने अपनी जो गलत चीजें, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया है, उसके लिए अपने आप को जिम्मेदारी को उठाऊं, अपनी जिम्मेदारी अपनी मतलब गलती को मानूं, तो वो मेरे बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण है। So I'll apologize to my girls for not being more patient with them for something. और अपनी बेटियों के साथ मैं माफी मांगने में मतलब देर नहीं करती। मैं उनके, अगर मेरे को लगता है कि मेरे को इस समय धीरजवंत होना चाहिए था उनके साथ, और अगर मैं नहीं हो पाई, अगर मैं उस अपनी धीरजता को मैं खो देती हूँ, और तो मैं उनके पास जा करके मैं उनसे माफी मांगती हूँ कि मुझे क्षमा करें, इस समय मुझे तुम्हें धीरज दिखाना चाहिए था। And I'll explain to them that mommy wants to be more like Jesus and I'm still learning. तो वो अपने बच्चों को इस तरीके से समझाने की कोशिश करती है कि मैं भी, तुम्हारी माँ भी जो है परमेश्वर की तरह बनना चाहती है, प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना चाहती है। तो मैं एक प्रोसेस में हूँ। आप अपने बच्चों के साथ इस बात को करना शुरू करें, मतलब उनके साथ एक खराई वाले रिश्ते में रहें। The other thing that I find helpful is to take a break when you see your anger or your frustration getting higher. और जब मैं देखती हूँ कि हम मेरे अंदर जो तनाव जो है और जो क्रोध जो है, इन सब चीजों को लेके चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, तो मैं एक ब्रेक लेती हूँ, मैं अपना छोटे से एक रेस्ट लेती हूँ। So my husband and I have agreed to never discipline out of anger. And so I'll tell the girls to go sit in their bed until I'm back in a place of love again. तो मैं मेरे हस्बैंड का एक रूल है कि जब हम अगर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, तो मैं अपनी बेटियों से यही बोलती हूँ कि जाकर तुम अपने बिस्तरे पे बैठो, तब तक मैं शांत हो जाऊंगी। तो मैं अपने आप को शांत करने की उस समय कोशिश करती हूँ। So then when I'm back in a place of loving them and seeing who God made them to be, then I will go talk to them and discipline them. और मैं अपने आप को इस जगह पर तैयार करती हूँ कि जब मैं उस स्थान में आ जाती हूँ कि मैं अब मेरा गुस्सा शांत हो गया और मैं उनसे उसी प्रेम को जैसा परमेश्वर चाहते हैं मैं उनको दिखाऊं, मैं तैयार हूँ वो प्रेम दिखाने के लिए, तब मैं जाती हूँ उनके पास और उनसे बात करती हूँ। And if my kids aren't misbehaving, they're just driving me crazy that day, which happens. This is mom hack, mom trick is going to the bathroom and just taking that couple minutes break. और जैसे अगर मेरे बच्चे बहुत ज्यादा किसी दिन शरारत करते हैं, तो बहुत ज्यादा काबू में ही नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, ये एक माँ का एक ट्रिक होता है कि वो बाथरूम में जाए और छोटा सा ब्रेक ले, अपने आप को शांत करे और फिर वापस आए। So I'm pulling myself away, separating myself from that frustration, and I'm asking God, okay, I don't want to have the impatience, I don't want to have the frustration, and I'm literally giving it to him and asking him for what he gives me in return, just like we do with the kids. और मैं क्या करती हूँ, उस समय उस सिचुएशन से दूर भागती हूँ जिसके करके मैं झुंझला रही हूँ, मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो मैं अपने आप को दूर करती हूँ ताकि मैं शांत हो सकूं, और मैं अपनी उस फ्रस्ट्रेशन को, जो तनाव है, वो सारी जो क्रोध उनके प्रति चिड़चिड़ापन है, उसको मैं परमेश्वर को दे देती हूँ ताकि प्रभु मुझे वो दे सके जिस तरीके से मैं उन बच्चों को डील कर सकूं। One of the goal of mature Christians is that we are immovable. Nothing can move us with circumstances. और जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम बिल्कुल भी हिलाई नहीं जा सकती, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं।
And when I'm being impatient with my kids, I'm actually giving my kids the authority to affect my peace. और अगर मैं अपने बच्चों के साथ धीरज को नहीं दिखाती तो मैं उनको अपने ऊपर अधिकार दे देती हूँ ताकि वो मेरी जो शांति है उसको खो लें। I'm giving them the key and saying, okay, based off of how you behave is how I'm going to feel. और मैं उनको एक ऐसी चाबी दे देती हूँ कि जिस तरीके से तुम व्यवहार करोगे उस तरीके का मैं फील करूंगी, मैं वैसा महसूस करूंगी। The more that we learn to be like Jesus, nothing around us will change our peace and our joy. और जितना हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बनने के लिए हम सीख जाएंगे तो कोई भी चीज जो है वो हमारी उस शांति को खत्म नहीं कर सकती। So just like the baby is learning how to walk, we're learning how to be more like Jesus. So we're patient with ourselves, giving grace to ourselves, learning how to do that. जिस तरीके से एक बच्चा चलना सीखता है उसी तरीके से हम परमेश्वर की तरह बनना सीखते हैं और धीरे धीरे उस धीरज को हम बढ़ाते हैं। But as you grow, you'll see that your peace and your joy doesn't get moved based off of what's going on around you. और लेकिन जैसे आप उस चीज में बढ़ जाते हैं तो कुछ भी हो जाए वो आपकी शांति को, आपके आनंद को हिला नहीं सकता। Which is really exciting to start walking in that, because all of a sudden you're okay no matter what. और ये बहुत ही ज्यादा उत्तेजित जन है क्योंकि जब आप इस पे कार्य करना शुरू कर देते हैं तो जब आप एक ऐसे लेवल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे कुछ भी होता रहे वो आपकी खुशी जो है वो आपके अंदर आनंद जो है बना रहता है, शांति बनी रहती है क्योंकि आपने वो हैंडल करना सीख लिया। आप वहां पहुंच गए उस स्तर में जहाँ पे बाहर कुछ भी होता रहे अंदर की जो आपकी शांति है वो हिलेगी नहीं। Yeah. Wow, that's really helpful and that's really powerful. और सचमुच हमें like we are really blessed by all these sharing which we have shared and the questions asked today. So the answers were really very much practical. Sometimes like in India, like what we do to discipline our kids, we like start reacting over the kids very soon. So this is the thing which we have learned, which we all have learned, that how we can create the balance between our parenting and how we cannot let children control our behavior. Yeah. I mean, it's like that here. We don't, it's common for parents to start yelling. Parents don't often start beating their kids here, but they'll yell at their kids. And so learning how to be more like Jesus in this, it's really exciting, but it's also very different for what we were taught and raised with. तो ये जैसे कि हमारे लिए बहुत आसान है कि हम बच्चों पर चिल्लाना शुरू कर दें, उनके ऊपर उनको मारना शुरू कर दें, लेकिन जैसे आज हमने जो सीखा कि बहुत ही जरूरी है कि एक संतुलन को बनाना और किस तरीके से हम सीख सकते हैं एक शांति को बना के रखना और परमेश्वर की तरह अपने आप को शांत करके उनको प्रेम करना। I did have one more thing that I thought of as we were asking these questions that I wanted to share about, and it's regarding children that have been abused. Children being abused? Yes, like sexually abused or being beaten at home. I don't know how India is set up. Here in America, we can call the cops and the kids are be protected. They get taken away from the parents that are abusing them. Or if it's another abusive situation, that person will get arrested and go to jail. But in India, do you guys have that type of a system, or are they just in the abuse? Let me just first translate. Is that okay? Yep. I'll translate. Yeah. तो मैं आपके प्रश्नों के साथ साथ मैंने एक टॉपिक जो चाहती थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं वो ये था कि किस तरीके से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, चाहे वो सेक्सुअली हो या फिर उनके साथ उनको मार पीट कर जो उनके साथ पेरेंट्स के द्वारा या किसी और के द्वारा उनके साथ शारीरिक शोषण किया जाता है, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। हमारे जो कंट्री में ऐसा है कि अगर बच्चों को कोई मार पीटता है उनके पेरेंट्स में से हम जो है पुलिस को बुला करके उनको पुलिस की सहायता के साथ। Nidhi, you cut out. You're gone now.
Nidhi? You're not coming through at all, Nidhi. Oh, and she's gone. All right. So Jessica, I'll continue further. Okay, thank you. So let me just complete what she was saying. Yes, and then I just have a question for how India works. Do you have a system that takes kids away, or are the kids stuck in that abusive situation? So honestly, telling here, people like like parents, they're very, I would say they are controlling in some manner. So Yeah. they do end up like they can hit, but it's not with all the parents here. It's not the same with all the parents here. So, but there is a system where you can actually report it to the police, but I won't say there is as immediate reaction or an action taken as it is taken in the Western countries. Okay, well, more I'm talking like sexual abuse, so rape or something like that. Do they have a way to protect the kids and get the kids out, or do the kids get left in those families? So it totally depends. Like if the family is very influential in the society, they might not let anything happen in that case. Like, you know, the kids might end up being with the family. But in certain cases, like there are some NGOs who will, you know, they will intervene and then they will rescue the kids. Okay. So that helps me know how to help you guys when a kid says that there's abuse going on in the home. So if you want to finish translating, then I want to share about that just a little bit. Nidhi, do you want to continue? No, you can translate. Okay. ये भी पूछ रहे थे कि इंडिया में कैसा होता है कि यहाँ पे जब अगर कोई बच्चा शारीरिक उसका शोषण हो या उसके पेरेंट्स उसको मारते हो तो कैसा होता है यहाँ पे। तो मैंने उनको बताया कि कुछ तरीकों में ऐसा होता है कि हाँ पुलिस वगैरह आती है, बट कई एरियाज में ऐसे है कि अगर फैमिली बड़ी पावरफुल है तो वो इन मामलों को दबा देते हैं, चाहे जैसे भी किसी भी तरह का बात हो। तो उन्होंने बोला आगे से कि उनको आसानी देगा कि वो हमें कैसे आगे बता सकते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ हमें कैसे डील करना चाहिए। So the reason I want to share about this is there's a high chance of a child sharing with you about abuse, whether it's being beat or about being raped at home. तो मैं ये इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये बांटना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाई चांस है, ऐसे संभावना ज्यादा है कि आपके पास कोई बच्चा आए और जो आपके साथ इन बातों को शेयर करे कि उसके साथ या तो शारीरिक शोषण हुआ है या उसके पेरेंट्स या कोई फैमिली मेंबर उसको मारता है। When kids feel loved and when they feel safe around you, they'll start opening up with their heart and what things are going on. तो जब आप उनको टीच कर रहे हैं, जब आप उनको पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है वो आपका प्यार देख के, जो आप प्यार उनको दे रहे हैं, वो चीजें देख के वो आपके सामने अपने मन की बातें खोलना शुरू कर दें। And so how you respond, the words that you say to them are very powerful. तो उस समय में आप उनको जो बातें बोलेंगे या उनको जिस तरीके से समझाएंगे वो बहुत ही पावरफुल होंगी और मतलब उन पे एक उसका काफी गहरा असर होगा। You want to let the kids know that that was never God's plan for them and that he loves them and he can heal their heart. तो अगर कोई बच्चा आपके पास आके ऐसी बातें खोलना शुरू करता है तो आप उसको कह सकते हैं कि परमेश्वर की ऐसी योजना नहीं थी आपके जीवन के लिए। Hopefully the child is able to be removed from the abusive situation, but if not, you can still give them truth and tools in the middle of an ugly situation. Sorry, can you repeat that? Yeah. Hopefully the kid can be removed and taken away from the family, but if not, you can still give them truth and healing in the middle of that. ओके, सो ऐसी सिचुएशन में आपका जो रिस्पॉन्स होगा उनकी तरफ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आप उनको उस स्थिति में से बाहर नहीं निकाल सकते, बट आप उनके साथ कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं या कुछ उनको ऐसी चीजें समझा सकते हैं जो उनको उस स्थिति में रहने के लिए मदद करें। So I was sexually abused or molested for several years when I was a little girl, and I didn't get healing until I was a teenager.
तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे साथ भी शारीरिक शोषण हुआ था काफी सालों तक। तो उनके लिए उस चीज से निकल के आना बहुत उनको टाइम लगा, और जब तक वो टीनेज थे, जब अपनी टीनेज में थे, तब जाके वो उस चीज को ओवरकम कर सके। The first person I told was a boy that I liked, and he accused me of being a liar for caring about purity because I had gone and done all this stuff. ओके, तो पहली बार जब इन्होंने ये बात किसी से शेयर करी, तो वो लड़का था जिनको ये पसंद करते थे। तो जब उन्होंने उसको ये बातें बताई, तो उसने बोला कि तुमने मुझसे ये झूठ बोला है कि तुम बिल्कुल पवित्र हो या सही थी तुम। He said that I was dirty and it brought a lot of shame to that was already there. तो उस लड़के ने इनको बोला कि तुम बहुत ही गलत हो, मतलब तुम अच्छी नहीं हो। तो उसके कारण इनको ऐसा महसूस हुआ कि इनके ऊपर बहुत सारी शर्मिंदगी आ गई है। And then I shut down and I locked it away in my heart until years later when God started healing it. तो उसके बाद इन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही बंद कर लिया और किसी के साथ इस बात को शेयर नहीं किया। उस शर्मिंदगी के साथ जीते रहे तब तक जब तक परमेश्वर इनके जीवन में नहीं आए। A lot of people will say that if you've gone through sexual abuse or rape, that you'll always be broken your whole life. सो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अगर किसी के साथ भी शारीरिक शोषण या बलात्कार होता है, तो क्या होता है कि वो काफी लंबे समय तक अपनी जिंदगी में टूटे रहते हैं। But those people are wrong because Jesus is big enough. क्यों मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग गलत हैं, क्योंकि हमारे जो प्रभु यीशु हैं वो इन सब बातों से बढ़कर हैं और ज्यादा शक्तिशाली हैं। And if a child shares with you about something that's happening to them, you get to be that voice of truth and that voice of healing to them. और अगर कोई भी बच्चा आकर आपके साथ ये बातें शेयर करता है, तो उस समय आपको परमेश्वर की आवाज बनना है और वो सच्ची आवाज बनना है और उनको हीलिंग देनी है, उनको संभालना है उस समय में। I used to have really bad night terrors. I was really afraid of men and I was really insecure about my body. तो काफी समय तक इनको, मतलब इन जो मेल हैं, जो मर्द हैं, इनको ये वो अच्छे नहीं लगते थे और काफी समय तक ये टूटे हुए रहते थे अपने अपने आप में। But Jesus is so big that all of that has been erased. बट प्रभु यीशु बहुत महान हैं और बड़े हैं। वो सब जो इनकी पुरानी यादें थी या जो इनके मन में गलत, जो इन्होंने अपने धारणाएं बना ली थी, वो सब परमेश्वर ने इनके मन में से निकाल दी। I don't have the nightmares anymore. I'm not afraid of men anymore. I don't have the body insecurities. तो अब इनको बिल्कुल कोई बुरे ख्यालात नहीं आते या रात को डरावने सपने नहीं आते, कुछ भी वो पुरानी जो इनके साथ हुआ उन चीजों को लेकर। अब ये किसी भी मेल जो है उनसे डरते नहीं है और अपने बॉडी को लेकर इनको कोई इनसिक्योरिटीज नहीं है, मतलब अपनी बॉडी को ये नीचा करके नहीं देखते हैं। And Jesus is so big that when I look back at the memories of the abuse, I don't feel the pain anymore. I don't feel the trauma and the fear anymore. तो अब जब इन्होंने यीशु मसीह को जाना, उसके बाद जब ये पुरानी उन हालातों को सोचते भी हैं जब इनके साथ शारीरिक शोषण हुआ, तो अब ये कहते हैं कि वो सब परमेश्वर ने निकाल दी और वो चीजों को सोचकर अब इनको कोई डर या ना ही इनको कोई दुख महसूस होता है उन चीजों को सोचकर। When I look back at those memories, all I see and all I feel is Jesus. और जब अभी भी कभी भी ये पुरानी उन चीजों को सोचते हैं, तो उनमें सिर्फ इनको प्रभु यीशु मसीह नजर आते हैं। So not only did Jesus deal with all of the bad, but I am now thriving in more peace and more joy and more life. तो उन पुरानी चीजों को सोचकर अब ये ऐसे नहीं है कि ये उन चीजों को सोचकर मन में घबराते हैं या कुछ नहीं, बट जब से इन्होंने यीशु मसीह को जाना, तो वो पुरानी चीजों अभी इन्हें डराती नहीं है, बट उनमें भी अब ये हर समय बर समय उन चीजों में ये शांति महसूस करते हैं और ये अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं। And you get to be that voice of hope to the kids and tell them how big Jesus is in the middle of their pain. तो जब छोटे बच्चे अगर आपसे ये बातें करते हैं, तो जब वो उस दुख के समय में होते हैं, उस समय आप परमेश्वर की वो उम्मीद की आवाज बन सकते हैं उनके लिए और उनको समझा सकते हैं। Even if the child stays in the abusive home, Jesus is big enough to cover them.
हो सकता है कि उनके साथ जो शोषण हो रहा हो या उनको मार कुटाई हो रही हो और उसके कारण वो उसी घर में अभी भी रह रहे हैं, तो उस हालातों में भी प्रभु यीशु मसीह बड़े हैं जो उनको संभाल सकते हैं उस हालात में। Of course, we hope and we want that child to be out of pain, but there still is hope even if they have to stay in that situation. तो अभी भी हो सकता है कि उनको उसी हालात में रहना पड़े, बट फिर भी हम हमारी इच्छा यही होती है कि बच्चे उस स्थिति में से बाहर आ जाएं, या तो कोई किसी भी तरीके से या कोई एनजीओ अडॉप्ट कर लें या उस हालातों में से वो बाहर निकल आए जहाँ पे उनके साथ मार कुटाई ना हो या कोई शोषण ना हो। बट अगर ऐसा नहीं भी हो पा रहा है तो उस स्थिति में भी उनको ये उम्मीद दिखानी है कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हैं और वो बल बनाए रखें। Jesus' protection over them is amazing, and his light is going to shine brighter than the darkness. तो यीशु मसीह की जो सुरक्षा है उनके ऊपर बहुत बढ़कर है और परमेश्वर की जो रोशनी है वो उनके जीवन पर जरूर चमकेगी। Just like that little girl that I told the story of, that I didn't see her for 6 months. She didn't go to church for 6 months, and Jesus covered her. तो उसी स्टोरी की तरह जो मैंने पहले बताई कि 6 महीने तक वो चर्च नहीं गई थी, 6 महीने तक उसने परमेश्वर को नहीं जाना था, बट फिर भी परमेश्वर ने उसको उस समय में भी संभाल कर रखा। She was sleeping on the floors of drug houses while her mom was doing drugs, and whatever terrible things were happening to that little girl. And yet Jesus was big enough to cover her and protect her and give her life in that place. तो चाहे वो जब वो स्टोरी उन्होंने बताई, जब उसमें जो वो बच्ची थी उसके जो माता थे वो नशे करते थे या कुछ भी करते थे, वो जमीन पर पड़े रहते थे, बट उन हालातों में भी वो 6 महीनों में भी परमेश्वर इतने महान हैं कि परमेश्वर ने उस लड़की को संभाल कर रखा उस हालातों में। So I wanted to talk just a little bit about how to handle that situation if you guys come across it, because there's a high chance that you will. तो मैं इसीलिए इस बारे में भी कुछ आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी, क्योंकि काफी ज्यादा संभावना है, हो सकता है कि आप ऐसे करके किसी बच्चों के संपर्क में आए जब आप संडे स्कूल कर रहे हो, तो वो आपके साथ आके इन चीजों के बारे में बात करें। And so you can pray and ask Jesus for wisdom and for words to say, if that's going to happen, that he'll help you in that moment. तो उन समय में भी आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर आपको उस समय में समझ दें कि आप इन बच्चों के साथ किस तरीके से बात कर सकें ताकि ये उन बच्चों के लिए सहायता बन सके। Jesus only did what he saw the Father doing, so you can look to Jesus and see what he's doing and copy him. तो यीशु मसीह ने वही सब कुछ किया जो पिता चाहते थे कि वो करें, और वो पिता को देख के ही सब कुछ करते थे। तो उसी तरीके से हम जब इन बच्चों के साथ डील करें तो हम पिता की ओर देख सकते हैं, यानी हम यीशु मसीह की ओर देख सकते हैं और परमेश्वर से बुद्धि मांग सकते हैं कि हम किस तरीके से इन हालातों में डील करें, इन हालातों से। Yeah. Priya asked about verses for the kids ministry. Would you let her know? I'm going to send an email to Vikram with the 4 YouTube links and with curriculum that I've written. And that gives her a bunch of good starting verses to work with. Okay, so जिस तरह आपने मुझसे okay. Go ahead. Are you going to translate, right? Nidhi, please go ahead. Okay. तो जैसे आपने क्वेश्चन में पूछा था कि किस तरीके से आप कुछ वर्सेस को चाहते थे कि मैं आपको कुछ वर्सेस दूं कि जिसके साथ आप कुछ शुरुआत कर सकें, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं पास्टर विक्रम को मेल में 4 लिंक जो क्लासेस के 4 लिंक है वो भी भेजूंगी, और साथ के साथ कुछ ऐसी वर्सेस भेजूंगी जिसके साथ आप क्लास को शुरू कर सकते हैं और जो चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के साथ रिलेट करती हूँ, ताकि वो आपको उन वचनों के द्वारा मदद मिल सके। Yes. So one of the lessons that are the documents that I'll be sending has the 1 sentence, the theme of the day, and the verse. Okay. So जो मैं डॉक्यूमेंट जो है उनको भेजूंगी उसमें क्या होगा कि एक दिन का जो आपने थीम लिया है, जो एक टॉपिक सिलेक्ट किया है, और उसके साथ उससे रिलेटेड जो है वर्स जो है वो जो वचन उससे मिलता जुलता वो मैं आपको भेजूंगी। So that'll be a good
help to be able to show you an idea of keeping the lesson simple and then the verse to go with it. वो आपको एक आइडिया दे देगा कि किस तरीके से आप जो अपने जो लेसन है जो आप उनके लिए तैयारी करते हैं वो आप सिंपल तरीके से आप तैयार कर सकते हैं और उसको किस तरीके से आप छोटा से छोटा रख सकते हैं और जिसको आपको समझाने में उनके लिए आसानी हो. And you can, I've said this before, but it's important that if you could teach that one sentence and that one verse over and over and over until the kids get it in their hearts. मैंने ये आपको पहले भी बताया लेकिन ये महत्वपूर्ण है इसलिए दोबारा बोलूंगी कि आप एक वर्स ले सकते हैं जिसको आप बार बार उनको सिखाते रहें जब तक वो उनके हृदय में ना छप जाए. It's more important for the kids to get one thing deep than to kind of understand a lot of things. और ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो चाहे एक ही चीज को वो गहरे में ले जाएं बजाय इसके कि हम बहुत सारी चीजों को उनको देते रहें और उनके समझ में कुछ भी ना आए. Because it's those deep things that you understand that anchor you in hard times. और क्योंकि जो आपके हृदय में अंदर चीजें चले जाती हैं जो बच्चों के हृदय में अंदर चीजें चले जाती है वो उनके मुश्किल समय में उनकी मदद करती हैं. Yeah. So I'll after this I'm gonna post Tuesday's video and this video onto YouTube, and so I'll send him all the YouTube links and all the documents that you guys can look and the lesson plans and see what we've done and ideas for how to do it with your guys' kids there. और इस क्लास के बाद मैं जल्दी इन दो जो पिछली क्लास और इस क्लास का लिंक है वो भी पास्टर विक्रम को भेज दूंगी और किस तरीके से हम क्लासेस को प्लान करते हैं और किस तरीके से सिलेबस को आप तैयार कर सकते हैं या थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से हम क्लासेस को लेते हैं हम क्या क्या करते हैं तो वो आपको मैं जो है भिजवा दूंगी. It's been my honor and my joy to meet with you guys the last couple of weeks. और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा आनंद और सौभाग्य की बात है कि मैं कुछ दिन आपके साथ इस तरीके से एक क्लास में बता सकी. You are definitely in my heart, and I will be praying for you guys in the journey with the kids, but also what you're dealing with COVID. और आप मेरे हृदय में हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना करती रहूंगी जब आप बच्चों के साथ कार्य करते हैं और जो आपकी अभी कंट्री में जो सिचुएशन चल रही है कोविड के कारण उसके लिए भी मैं प्रार्थना करती रहूंगी. So I love you and I bless you in the name of Jesus. मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको प्रभु यीशु के नाम में आशीष देती हूँ. Thank you so much, Jessica, for your presence. We are really blessed by all the words which you have said, and then the way you have answered all the questions with your experience and everything. We are really blessed by everything which you have said, and people are saying we will miss you, and they are thanking you, and we all bless you in Thank you. Jesus' name. Thank you. Okay. Thank you. Let me Thank pray you. for you, and on behalf of us. Yes, that would be So, wonderful. अभी हम सिस्टर जेसिका के लिए सभी मिलकर के प्रार्थना करेंगे. So I'll lead in prayer. Okay. Father God, we are really thankful for the life of Sister Jessica. We really bless her in Jesus' name. We are really thankful for all the experiences which you have given in her life so that she can enrich many more people for your kingdom and for the ministry among children. And Lord, we bless her with all your wisdom, with all the way she is doing ministry in all her ways. Bless her, and Lord, make her a channel of blessing, a source of blessing for many lives. And whoever come into in touch of her life may be blessed, and Lord, may catch that spirit and the burden which you have given in her heart, implanted in her heart. Lord, help us whatever we have learned from her, and Lord, we may be able to imply in our ministries when we are dealing with kids in Sunday school, as well as when we are giving the parenting to our kids, and how we have the way we have learned how to give a godly parenting to the children. Lord, help us to be patient with our kids, and Lord, we bless her family, her daughters, her husband. Lord, we bless everyone in their church and ministry, the kids she is dealing with, and Lord, their ministry be a blessing for many souls, Lord, and many be saved by them, and Lord, through their ministry.
and everything will be blessed in your name. This we ask in your holy and precious name. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. You guys are a blessing, and I'm excited to see what God is going to do in India and what God is going to do in the kiddos. And we have received a lot of messages I've been thanking seeing them. you and your about your teaching. They're really blessed by your teaching. I'm so glad it was a blessing. I'm excited to see what God's going to do with it. They're saying you are really a very good teacher. That's very kind. Thank you. Yeah. Thank you so much. We are really blessed, and we got this honor to be blessed by you, to learn so many things by you. Thank you. And I love you guys, and I'm praying for you guys. We love you too. Bye-bye. Bye-bye.